آزاد کشمیر میں 11ویں عام انتخابات کل ہو رہے ہیں۔ انتخابی مہم کا وقت ختم۔ 45 نشستوں پر پولنگ کے لیے انتظامات مکمل۔ پولنگ سے پہلے جلسے، جلوس، ریلیاں اور کارنر میٹنگز پر پابندی۔ پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس سمیت 32 سیاسی جماعتوں کے 700 کے قریب امیدوار میدان میں۔ پولنگ 25 جولائی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ یاسین ملک آپ کو پیغام دے رہے ہیں، حوصلہ نہ ہارنا، انشاءاللہ آسانیاں آنے والی ہیں، اور پھر سے ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان اور کشمیر کی قوم، کہ آپ خود فیصلہ کریں گے اپنے مستقبل کا۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔ انتخابات میں ہارنے کے ڈر سے اپوزیشن نے دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیا۔ شفافیت کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کی تجویز دی۔ آزاد کشمیر کے عوام کو غربت سے نکالیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ترانکل میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی ہمدردیاں عوام سے نہیں بلکہ باہر جمع کی گئی دولت سے ہیں۔ وہ لیڈر کبھی ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا جو دوسروں کے اشاروں پر چلتا ہو۔ آزاد کشمیر انتخابات میں کامیابی کے بعد تعلیم، صحت اور روزگار کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کوٹلی میں جلسے سے خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہر فورم پر کشمیر کے حق میں آواز بلند کی۔ بھارت کے ساتھ تعلقات کی بحالی 5 اگست کے اقدامات کی واپسی سے مشروط ہے۔ پاکستان کے خلاف اٹھنے والی ہر سازش کو پاک فوج ناکام بنا دے گی۔ غریب کو روزگار دینا حکومت کا مشن ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا راولپنڈی میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ چین۔ وزیر خارجہ چینی ہم منصب اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی راہداری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 1841 نئے کیس رپورٹ، 32 افراد جاں بحق۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 37,636 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 4.89% ہو گئی۔ سندھ میں مثبت کیسز کی شرح میں اضافے کے باعث تعلیمی ادارے، ہوٹلز، شادی ہال پیر سے بند۔ مارکیٹیں صبح 6 سے شام 6 بجے تک کھلی رہیں گی۔ دفاتر میں 50% حاضری کے ساتھ کام کی اجازت ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت، سوپور میں 2 کشمیری نوجوان شہید، کیمیائی مواد سے 2 مکان تباہ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا کشمیریوں کی نسل کشی پر شدید اظہار تشویش۔ بھارتی کسانوں کا متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج جاری۔ دلی میں دھرنا، پرامن احتجاج کے باوجود مودی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ 200 کاشتکار گرفتار۔ لال قلعے کے ارد گرد سخت حفاظتی انتظامات، جگہ جگہ پولیس تعینات۔ بھارت اور چین میں شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچا دی۔ بھارت میں 112 اور چین میں 51 افراد ہلاک، سینکڑوں لاپتہ۔ نظام زندگی بری طرح متاثر، امدادی سرگرمیاں جاری۔ چین میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے $10 بلین سے زائد کا نقصان۔ محکمہ موسمیات نے بھارت میں متاثرہ علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ ٹوکیو اولمپکس 2020 خواتین بیڈمنٹن کے سنگلز ایونٹ میں پاکستان کی ماہور شہزاد کو شکست۔ ماہور شہزاد کو جاپان کی یاماگوچی نے اسٹریٹ سیٹس میں ہرا دیا۔ یاماگوچی کی جیت کا سکور 21-3 اور 21-8 رہا۔ شوٹنگ 10 میٹر
एयर पिस्टल इवेंट में पाकिस्तान की गुलफाम जोसेफ क्वालिफाई करने में नाकाम। टोक्यो ओलंपिक्स का रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ आगाज। 206 ममालिक के 11,000 से जायद एथलीट्स की शिरकत। 33 खेलों के 339 इवेंट्स। कोरोना वबा के बायस मुकाबले शायकीन के बगैर हो रहे हैं। मेगा इवेंट देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा वेस्ट इंडीज। कौमी क्रिकेटर्स का बारबाडोस में प्रैक्टिस सेशन। नेट प्रैक्टिस के अलावा फील्डिंग की भी खुसूसी ड्रिल्स। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। T20 सीरीज का आगाज 27 जुलाई से होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं नाजिया कमल और मैं हूं शाहिद नसीम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान म्यूजिक वीडियोस मुकाबला 14 अगस्त 14 लाख नक़द। अगर आपके सुरों से आजादी की महक आती है तो अपने बेहतरीन मिल्ली नगमों की वीडियोस 25 जुलाई तक हमें भेज दीजिए। 29 मुंतखब गाने 1 अगस्त से 14 अगस्त तक BTV पर नशर किए जाएंगे। तो आज ही वतन के नाम अपनी मोहब्बत को नगमे की शक्ल दीजिए। वीडियो शूट कीजिए और HD क्वालिटी वीडियोस बजरिया वी ट्रांसफर या गूगल ड्राइव लिंक salampakistan@ptv.com.pk पर भेज दीजिए। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए, तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 25 जुलाई 2021 है। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस की। आज़ाद कश्मीर में 11वें आम इंतखाबात कल हो रहे हैं और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए, जबकि ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक अब उम्मीदवार पोलिंग से पहले जलसे जुलूस, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर सकते। पोलिंग 25 जुलाई सुबह 8 बजे से बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों के लिए 32 लाख से ज़ायद वोटर्स 5 साल के लिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस समेत 32 सियासी जमातों के 700 के करीब उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग स्टेशन और इंतजामात से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अदील अहमद खान से। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अदील, हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, आज इंतखाबी मैदान जो है वो सज चुका है, तैयारियां मुकम्मल हैं। 11वें इंतखाबात कल होने जा रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन कैंपेन है आज रात 12 बजे ख़त्म हो चुकी है। और मैं आपको बताता चलूं कि पोलिंग मटीरियल की तरसील और इंतखाबी अमले की तैनाती का सिलसिला है वो आज जारी है, जो आज रात तक तकरीबन मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो अमला है वो अपने अपने मुतालिका पोलिंग स्टेशन पर जो इंतखाबी मटीरियल है, इलेक्शन मटीरियल, पोलिंग मटीरियल है वो लेकर पहुंच जाएगा। ये मरहला आज रात को तक मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा आपको मजीद बताता चलूँ कि यहाँ जो इंतखाबात के साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए आज़ाद कश्मीर पुलिस, FC, रेंजर्स और पाक फौज समेत तकरीबन 40,000 के लगभग जो है वो नफरी तैनात कर दी गई है। और आपको मजीद बताता चलूँ कि कल जो है वो 32,20,793 वोटर जो है वो अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो कुल 32 जमातों के 700 के लगभग जो उम्मीदवार हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 261 आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। और पोलिंग के बारे में बताता चलूँ कि सुबह 8 बजे पोलिंग का सिलसिला शुरू होगा, जो बगैर किसी वक्फे के रात 5 बजे तक ये पोलिंग जारी रहेगी। जी अदील, ये बताइएगा कि कल इंतखाबात के हवाले से और इसके इनेकाद के हवाले से जो इंतखाबी अमला है, क्या वो इस वक्त वहाँ पर पहुँच चुका है? जी बिल्कुल। जो मुजफ्फराबाद डिवीजन है, इसका जो इंतखाबी अमला है इस वक्त उनको मरकज़ में इकट्ठा किया गया है। पॉइंट्स बने हैं जहाँ से उनको जो पोलिंग मटीरियल है वो इंतखाबी जो मवाद है वो उनको दिया जा रहा है, उनके हैंड ओवर किया जा रहा है और बाहिफाजत उनको आज रवाना किया जाएगा। सिक्योरिटी के अंदर उनको जो है वो पोलिंग स्टेशन अपने अपने जो मुतलके हैं उनको आज रात तक ये जो मरहला है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी
عادل یہ بتائیے گا کہ بہت سی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی جانب سے یہ سننے میں آ رہا تھا، الیکشن سے پہلے واویلا کیا جا رہا تھا کہ وہاں پر دھاندلی ہو رہی ہے، تو آپ چونکہ گراؤنڈ پر موجود ہیں تو ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا مناظر آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں، کس قسم کی سچویشنز ہیں، کیا جو سیفٹی کے جو پروٹوکولز ہیں ان کو مکمل طور پر فالو کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے، اس وقت جو صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ اور پرامن انتخابات کا جو اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، فی الوقت تو اس وقت جو سموتھ صورتحال ہے، کسی قسم کا کوئی واقعہ ایسا جو ہے جس کو کوٹ کیا جا سکے یا کوئی اتھینٹک واقعہ وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے ہیں، لیکن جو مجموعی طور پر اس وقت اب تک پرامن ماحول ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ بہترین اور پرامن ماحول میں انتخابات جو ہیں وہ ان کا انعقاد جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں، تمام تر جو گراؤنڈز ہیں وہ سیٹ کیے جا چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ عادل، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے، ہم اصل لائن پر موجود تھے اور اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔ تراکھل میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام کو ریلیف فراہم کرنا اور غربت میں کمی ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ تراڑکھل پلندری میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیری عوام کی لازوال قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام جلد آزادی کا سورج طلوع ہوتا دیکھیں گے۔ پورا اللہ پہ ایمان ہے کہ جتنی کشمیر کے لوگوں نے قربانیاں دی، یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ نے آپ کو وہ حق دینا ہے، ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ، اور آپ فیصلہ کریں گے کہ ہندوستان نہیں، آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ میں آج آپ کو اصل بات کہنا آیا ہوں کہ اس کے بعد میری حکومت پھر ایک ریفرینڈم کروائے گی، اور اس ریفرینڈم میں کشمیر کے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آزاد ہونا چاہتے ہو۔ ہم اس جلسے سے علی گیلانی جو اس وقت جیل میں ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ان کو آج سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کی جدوجہد کو۔ اور دوسرا، یاسین ملک، آپ کو پیغام دے رہے ہیں، حوصلہ نہ ہارنا۔ انشاءاللہ آسانی آنے والی ہے، ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان اور کشمیر کی قوم۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو ایک عظیم قوم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح آزاد کشمیر میں بھی غربت میں کمی اور عوام کا معیار زندگی بہتر بنانا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ میرے پاکستانیوں، میرے کشمیریوں، اس قوم نے ایک عظیم قوم بننا انشاءاللہ۔ میری سب سے پہلے کوشش ہوگی کہ میں آزاد کشمیر میں غربت کم کروں۔ یہ یاد رکھ لیں کہ پچھلے 10 سال وہ دونوں حکومتوں کو دیکھ لیں اور یہ ہمارا دور دیکھ لیں، ساری دنیا میں کشمیر کا کسی نے نام لیا؟ کیا یونائٹڈ نیشن میں جا کے کسی نے تقریر کی؟ کیا کسی نے باہر انٹرویو دیا؟ وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ نریندر مودی کو شادیوں پہ برایا جا رہا ہے، وہ پاکستانیوں کے اوپر تشدد کر رہا ہے۔ ہر جگہ دنیا میں جدھر وہ جاتا تھا کہتا تھا پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، اور یہ منتیں کر رہا ہے کہ ہماری جی شادی پہ آ جاؤ۔ نواز شریف ہندوستان جاتا ہے، وہاں حریت کشمیری لیڈر سے نہیں ملتا کہ مودی صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ اپنے 5 سال میں آپ نے کیا کیا، اور ادھر تو پوچھے ہی نانا وہ زرداری کا۔ زرداری کو پیسے گننے میں وقت ملتا تو وہ کشمیر کی بات کرتا۔
इंतखाबी इस्लाहात का जिक्र करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात के नताइज में शफाफियत लाने के लिए गैर मुतज़लज़ल जद्दोजहद जारी रखे हुए है। उनका कहना था कि जो जमातें आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से पहले ही धांधली का शोर मचा रही हैं, दरअसल उन्हें अपनी शिकस्त वाज़े नजर आ रही है। हम 1 साल से लगे हुए हैं कहने सारी ऑपोजिशन की जमातों को कि आओ हमारे साथ बैठ के इलेक्शन सिस्टम की इस्लाहत करो, ताकि इलेक्शन हमारे मुल्क में ऐसे हो कि जो हारे तो वो मान जाए हार, कोई नहीं आता, और जब इलेक्शन आने लगा तो आप कहते हैं कि जी धांधली होगी। हमने तजवीज़ दी उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। इससे क्या होता है, जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ एक बटन दबाया और रिजल्ट आ गया, ना कोई आपको तकलीफ करनी पड़ती है कि डब्बे भरे जाएंगे, ना कोई डब्बे चोरी हो जाएंगे, ना कोई डबल स्टैम्प करेगा। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों का मुकदमा जिस वाशगाफ अंदाज में आलमी सतह पर उजागर किया, उसकी मिसाल माजी की 5 दिहाइयों में नहीं मिलती। जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए सेनेटर फैसल जावेद, कानून साज असेंबली के उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास, सरदार रहीम अख्तर रब्बानी और सरदार अर्जिश ने कहा कि माजी की हुकूमतें अवाम को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम रहीं। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान की सूरत में कौम को मुदब्बिर और मुखलिस क़यादत मिली है, जिन्होंने कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया के हर मौसर फोरम पर उजागर की। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत की हमदर्दियाँ मुल्क के अवाम से नहीं बल्कि बाहर जमा की गई दौलत से हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो लीडर कभी जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता जो दूसरों के इशारों पर चलता हो। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी के बाद वहाँ के अवाम को तालीम, सेहत और रोज़गार की सहूलियत की फराहमी यकीनी बनाएंगे। तफसील जानिए मोहम्मद नवीद अजहर से। कोटली आज़ाद कश्मीर में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारी हुकूमत ने कश्मीर के मुकदमे को आलमी सतह पर भरपूर उजागर किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत बताए कि उन्होंने RSS आइडियालॉजी और कश्मीरियों पर जुल्म के खिलाफ कहाँ आवाज़ उठाई। आपके पास ये 2 पुरानी जमातों के लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें मौका दिया जाए फिर से। आपने 2 चीजें पूछनी है उनसे हमेशा, लोगों को मुश्किलों से, गुर्बत से निकालने के लिए क्या किया। दूसरी चीज आपने पूछनी है, कितना आपने दुनिया में जाके कश्मीरियों का केस लड़ा। वो नरेंद्र मोदी जिसने कश्मीरियों के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म किया, कितनी दफा आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ ने RSS का नाम लिया। आवाज उठाने तो दूर की बात है, उसकी मिन्नतें करके नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया गया। अपनी मिन्नतें करके उसका जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना था वहां गया, हुर्रियत के लीडर्स को नहीं मिला, कश्मीर की बात नहीं की। वजीर आजम ने कहा कि जिन सियासी रहनुमाओं की मुल्क से लूटी रकम बाहर के मुल्कों में पड़ी है, वो कभी मुल्क के मफाद में काम नहीं करते। अगर किसी भी पॉलिटिशियन का चोरी का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो तो ये सारे जो बाहर के मगरब के मुल्क है उनको पता होता है, वो कंट्रोल करते हैं आपको। वुकला की मूवमेंट चली हुई थी, इलेक्शन का बॉयकॉट करने जा रहे थे 2008 में। APDM की जमातें एक तरफ थी, हम सारे थे APDM में। हम कह रहे थे चीफ जस्टिस को निकाला, उसको बहाल करो, हम इलेक्शन ही लड़ेंगे। हमारे साथ नवाज शरीफ भी था, 3 दफा उसने बैठ के हमारे साथ इलेक्शन का बॉयकॉट किया। और उसके बाद बाहर से उसको हुक्म आया, जिधर उसके पैसे बाहर पड़े थे उन्होंने उसको हुक्म किया कि इलेक्शन लड़ो, और इसने हम सबको नहर के पुल पे खड़ा करके खुद जाके इलेक्शन लड़ लिया। नरेंद्र मोदी से ये क्यों साथ मिलाना चाहता था नवाज शरीफ? क्योंकि ये भी कश्मीर के लोगों सुन लो, जो हिंदुस्तान की लॉबी है बाहर और खास तौर पे अमेरिका में, वो इसराइल के साथ मिलकर काम करती है, सबसे तकड़ी लॉबी है। इसको उसकी दोस्ती इसलिए कर रहा था नरेंद्र मोदी से कि वो इसकी मदद करे, अगर इनके जो पैसे बाहर पड़े हैं वो बच जाएं। वजीर आजम ने कहा कि ड्रोन हमलों से मुतल्लिक दोनों जमातों को रहनुमाओं ने पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स होते थे, दोनों हुकूमतें आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों मजम्मत करते थे, और अंदर से दोनों ने इजाजत दी हुई थी। मेरे होते हुए क्यों नहीं कोई ड्रोन अटैक होता?
अमेरिका को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, हमारे अपने लोगों ने इजाजत दी हुई थी अपने लोगों पे बमबारी करने की। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की गुज़श्ता हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल करके कश्मीर के लोगों को सेहत, तालीम और रोजगार की फराहमी यकीनी बनाएगी। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमारे 2 प्रोग्राम आ रहे हैं, एक है कामयाब पाकिस्तान और दूसरा है एहसास। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा सिर्फ अपने गरीब, निचले, कमजोर तबकों को ऊपर उठाने के लिए। विफाकी वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कश्मीर के अवाम 25 तारीख के इलेक्शन में अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। अवामी इज्तिमा से तहरीक इंसाफ कोटली के उम्मीदवारों ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि सफीर कश्मीर वजीर आज़म इमरान खान ने दुनिया भर में मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उजागर किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर के अवाम तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि कश्मीर के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। भारत के साथ ताल्लुकात की बहाली 5 अगस्त के इक़दामात की वापसी से मशरूत है। रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हर फोरम पर कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद की है। गरीब को रोज़गार देना हुकूमत का मिशन है। दासू और भाषा डैम तवानाई मंसूबे मुल्क की तकदीर बदल देंगे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों के लिए खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर कायम कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इफ्तिताह किया। इस खुसूसी काउंटर के जरिए चीनी मुसाफिरों की तेज़ तरीन इमिग्रेशन हो सकेगी। सी पैक वीज़ा होल्डर्स भी इस काउंटर से इस्तेफादा कर सकेंगे। वजारत दाखिला की तरफ से सी पैक वीज़ा कैटेगरी का भी इजरा किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए हैं। चेंगजू हवाई अड्डे पर चीन के आला हुकाम ने वज़ीर ख़ारिजा का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारिजा चीनी हम मनसब वांग यी समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा अपने दौरे के दौरान चीन के सूबे सिचुआन के दारुल हुकूमत चेंगजू में पाक चीन 2 तरफ़ा वफूद की सतह पर मुनक़िदा मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों पर होने वाली पेशरफ़्त, कोरोना वैक्सीन की दस्तियाबी, इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई और सिक्योरिटी शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और ख़ित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल किया जाएगा। वफूद की सतह पर होने वाले पाक चीन मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा का दौरा चीन, पाकिस्तान और चीन के दरमियान 70 साला सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित के फ़रोग़ के हवाले से खुसूसी अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजना इसलिए ख़तरनाक था कि ऐसे लोग बैनुल अक़वामी साजिशों में मददगार बन जाते हैं। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि नवाज शरीफ की अफगानिस्तान में रॉ के सबसे बड़े हलीफ अमरुल्लाह साले से मुलाकात ऐसी ही कार्रवाई की मिसाल है। मोदी हों या अमरुल्लाह साले, हर पाकिस्तान दुश्मन नवाज शरीफ का करीबी दोस्त है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1841 नए केसेस सामने आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 4.89% रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए, जहाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 22,971 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 37,636 टेस्ट किए गए। ईद उल अज़हा के बाद मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भरपूर तरीके से जारी है। मुल्क में अब तक 2 करोड़ 45 लाख से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। रोज़ाना लाखों लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम वैक्सीनेशन के लिए जल्द अज जल्द खुद को रजिस्टर करवाएं ताकि इस वबा से महफूज रहें। अगर मुस्तकबिल में लॉकडाउन की बंदिशों से बचना है तो SOPs पर अमल दरामद नागुज़ीर है। मास्क पहनें और हुजूम की तरफ ना जाएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगे तो ही कोरोना की चौथी लहर से नबरदाज़मा होना मुमकिन होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म नवाबजादा लियाकत अली खान के बेटे की इयादत की। सदर ममलकत ने अकबर लियाकत अली खान की रिहाइशगाह पर उनके अहले खाना से मुलाकात की और अकबर लियाकत अली खान की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साबिक सदर मरहूम ममनून हुसैन के घर गए और उनके इंतकाल पर अहले खाना से अफसोस का इजहार किया। सदर ममलिकत ने साबिक सदर ममनून हुसैन की मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख्वानी की। सदर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज़ साबिक सदर ममनून हुसैन की कब्र पर हाज़री दी और फातिहा ख्वानी की।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि सिंध हुकूमत कराची शहर की सफाई में नाकाम हो गई है। पीपल्स पार्टी ने शहर को कचरा कुंडी बनाकर रख दिया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि कराची में हर तरफ आलाइशों के अंबार लग गए हैं। वज़ीर आला सिंध को इलाके के दौरे की दावत देता हूँ। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सफाई के नाम पर अरबों रुपए खा गई। सिंध से चोरी का पैसा इलेक्शन में लगाया जा रहा है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि दुश्मन तराजी नून लीग का वतीरा है। उन्होंने कहा कि लाड़काना और कराची में गंदगी के ढेर हैं। सिंध हुकूमत को इश्तहारबाजी से फुर्सत नहीं। मजीद कहते हैं कि वज़ीर आला के करीबी अफराद मुनशियात फरोश हैं और सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी की चाकरी कर रही है। सिंध में रेंजर से ऑपरेशन कराया जाए। हलीम आदिल शेख ने कहा कि तहरीक इंसाफ सिंध में ताकत बनकर उभर रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है और कामयाबियां हासिल कर रहा है। हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी समेत तमाम शोबों को साथ लेकर चल रही है। लाहौर में कोऑर्डिनेटर सैयद अजमत अली शाह और वफूद से मुलाकातों के दौरान गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि कमज़ोर तबके को ऊपर लाने के लिए वफाकी और पंजाब हुकूमत हिकमत अमली अपना रही है और अमली इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि अफगान नायब सदर का पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा खित्ते में अमन के खिलाफ साजिश है। अफगान हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अमन के लिए खित्ते में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम अफगानियों की हिमायत करता है। पाक बहरिया का जहाज़ PNS जुल्फ़िकार ऑपरेशनल सरगर्मियों के तहत मुख्तलिफ ममालिक का खैरसगाली दौरा करते हुए रूस पहुँच गया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक रूस की बंदरगाह सेंट पीटर्सबर्ग आमद पर मेज़बान बहरिया और पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम ने पाक बहरिया के जहाज़ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया की जानिब से जहाज़ पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें रूसी हुकूमत और बहरिया के आला हुक्काम, सिफारती और मकामी शख्सियात के अलावा पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने भी शिरकत की। तकरीब में हाज़रीन को खित्ते में समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। PNS जुल्फ़िकार रूस की नेवी डे पर और उस परेड में भी हिस्सा लेगा। पाकिस्तानी जहाज़ के इस दौरे से दो तरफ़ा बहरी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान सोपूर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। KMS के मुताबिक नौजवानों की मैयतें भारतीय फ़ौजों की तरफ से कीमियाई मवाद के ज़रिए तबाह किए गए 2 मकानों के मलबे से बरामद हुई। काबिज़ इंतज़ामिया ने कस्बे में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में ईद उल अज़हा के मौके पर भारतीय फ़ौजियों के हाथों निहत्ते कश्मीरियों की नस्लकुशी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौजी तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान बेगुनाह लोगों के कत्ल के अलावा मकामी आबादी को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से अपील की कि वो मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल कराने के लिए किरदार अदा करें। मीर वाइज हुर्रियत फोरम ने श्रीनगर से जारी एक बयान में भारतीय हुकूमत की तरफ से तंजीम के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक, बिलाल गनी लोन, मसरूर अब्बास अंसारी की निगरानी और दीगर कश्मीरियों के फ़ोन हैक करने की मसम्मत की है। बयान में कहा गया कि निगरानी के लिए लोगों के फ़ोन हैक करना राजदारी के आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है और इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हुर्रियत रहनुमा जावेद अहमद मीर ने श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर सबसे पुराना तनाज़ा है और ये आलमी इदारे की अब जिम्मेदारी है कि वो इस मसले को अपनी मुतालिका करारदादों के मुताबिक हल करवाए। इससे पहले जावेद अहमद मीर नमाज जुमा की अदायगी के लिए हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की यादगार गए। काबिज़ इंतज़ामिया ने उन्हें और दीगर कश्मीरियों को दाखिले की इजाज़त नहीं दी। इंतज़ामिया ने श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद और दरगाह हज़रत बल समेत मकबूजा इलाके की तमाम बड़ी इबादत गाहों में नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त नहीं दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फ़ौज अपनी हिमायत याफ्ता नाम निहाद देही दिफाई कमेटी के अरकान को राजौरी और पूंछ के अजला में जदीद हथियारों के इस्तेमाल और ड्रोन तैयारों की निशानदही करने के लिए खुसूसी तरबियत दे रही है। भारतीय किसानों का मुतनाज़ ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुज़ाहिरीन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना दे रखा है। मोदी हुकूमत की जानिब से लाल किले के इर्द गिर्द सख्त हिफाजती इंतजाम कर लिए गए हैं। जगह जगह पुलिस एहलकार तैनात हैं। सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। सड़कों पर कील भी नस्ब करने की इतलात है। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय पुलिस ने 200 किसानों को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर गिरफ्तार कर लिया था। किसानों का कहना है कि मोदी सरकार उनके पुरअमन एहतजाज के बावजूद ओछे हथकंडे इख्तियार कर रही है। उनको एहतजाज के मकाम पर आने से रोकने के लिए नाजायज़ तरीके से तंग किया जाता है। अफ्रीका के WHO के रीजनल डायरेक्टर ने
अफ्रीकी ममालिक पर जोर दिया है कि वो कोरोना की रोकथाम की कोशिशों को तेज करें। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में कोविड के केसेस की तादाद 6.2 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है, जिसमें 1,59,000 से ज़्यादा अमवात हैं। अफ्रीका में गुज़िश्ता हफ्ते 2,82,000 से ज़्यादा नए तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया में डेल्टा वायरस के फैलने की वजह से न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 8 हफ्तों के लिए हवाई सफ़र को रोकने का फैसला किया है। रियासत न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन मज़ीद सख्त कर दिया गया है और इसे नेशनल एमरजेंसी करार दे दिया गया है। रियासत के सरबराह ने इंदिया दिया है कि लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत भी दी जा सकती हैं। उन्होंने मुल्क के सबसे बड़े शहर सिडनी में हालात को कौमी सतह की हंगामी हालत से ताबीर किया है। सिडनी में लॉकडाउन 30 जुलाई तक के लिए था, ताहम अब इसमें मुमकिन तौर पर तोसी की जा सकती है। हुकाम के मुताबिक न्यू साउथ वेल्स में कोरोना वायरस के 136 नए केसेस सामने आए हैं और अब तक 1900 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने न्यू साउथ वेल्स के लिए वैक्सीन की तादाद बढ़ा दी है। बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना का सामना मुअस्सर हिकमत अमली से किया है। मुल्क में अब तक 32,500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और हलाकतों की तादाद 916 है। आधी से ज़्यादा आबादी अभी तक लॉकडाउन में है। भारतीय किस्म डेल्टा ने दुनिया के कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले लिया है। फ्रांस में डेल्टा वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। रोज़ाना 22,000 के करीब डेल्टा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि अगर SOPs पर अमल दरामद ना किया गया और दोबारा पाबंदियां ना लगाई गईं तो मुल्क में अगस्त के शुरू में रोजाना केसेस की तादाद 50,000 हो सकती है। रूस में भारतीय किस्म डेल्टा मुकम्मल पंजे गाड़ चुकी है। रोजाना हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रूस में गुज़श्ता 3 दिन के अंदर हलाकतों की तादाद 2,500 के करीब पहुँच गई है। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 41,57,000 से तजावुज़ कर चुकी है। 19 करोड़ 38 लाख मुतासिर अफराद में से 17 करोड़ 60 लाख के करीब सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना केसेस के एतबार से अमेरिका बदस्तूर पहले, भारत दूसरे और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। अमेरिका में 6,26,000, भारत में 4,20,000 और ब्राज़ील 5,47,000 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। अफगानिस्तान में गैर मुल्की फ़ौजों के इनखला के बाद तालिबान ने मुल्क के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया है और उनकी तेज़ रफ्तार पेशकदमी जारी है। ताहम अफगान वजारत दिफा का कहना है कि तालिबान का 90% सरहदों पर कब्जे का दावा गलत है और मुल्क की सरहदें अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में है। खबर एजेंसी के मुताबिक वजारत दिफा के नायब तर्जुमान फवाद अमान ने तालिबान के दावों को बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करार दिया है। तालिबान के तर्जुमान ने दावा किया था कि अफगानिस्तान के 90% सरहद पर तालिबान का कंट्रोल है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने गुज़श्ता रोज़ रूस की मुकामी न्यूज़ एजेंसी को बताया था कि अफगानिस्तान की ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान समेत 90% सरहद तालिबान के कब्ज़े में है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक अफगान फ़ौज तालिबान के खिलाफ अपनी कुव्वत यकजा करके अहम शहरों को महफूज बनाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। अफगान और अमरीकी हुकाम के मुताबिक फ़ौज की कोशिश है कि सरहदी गुजरगाहों और गुंजान आबाद शहरों को महफूज बनाया जाए ताकि जानी नुकसान कम से कम हो। हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ सूबाई दारुल हुकूमतों की हिफाजत पर तैनात फ़ौज को अददी क़िल्लत का सामना है। अमरीका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली पहले ही ये वाज़ेह कर चुके हैं कि अफगान फोर्सेज ज़िले मराकज़ छोड़कर बड़े शहरों को महफूज बनाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के बायस हंगामी तौर पर हिजरत करने वालों की मदद के लिए $100 मिलियन के फंड्स की मंजूरी दे दी। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यह रकम एमरजेंसी रेफ्यूजी एंड माइग्रेशन असिस्टेंस फंड से ली जाएगी और इससे अफगानिस्तान से गैर मुतवक्के और फौरी हिजरत करने वालों, तनाज़े का शिकार अफराद और अफगानिस्तान में बिगड़ती सूरत हाल के नतीजे में खतरे में पड़ने वाले दीगर अफराद की मदद की जा सकेगी। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज और दीगर इदारों के लिए काम करने वाले 20,000 अफगान तर्जुमान भी इस रकम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जिन्होंने स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा के तहत अफगानिस्तान से इनखला के लिए दरखास्तें दे रखी हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि यह रकम बैनुल अक़वामी तंजीमों, गैर सरकारी ग्रुप्स, हुकूमतों और अमरीकी इदारे के ज़रिए तकसीम की जा सकेगी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान की माली मदद जारी रखें। चीन के वस्ती सूबे हेनान में शदीद बारिश और सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 51 हो गई, जबकि मुतअद्दिद अभी भी लापता हैं। मुतासरा इलाकों में हज़ारों फौजी और सिविल इंतजामिया के अहलकार इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं, जबकि लाखों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सूबे में मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम है, जबकि ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल है। हुकाम ने सूबे भर में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। तूफान से मुतासरा शहर जिंगजू में अब तक 3,95,000 से ज़्यादा अफराद को निकाल लिया गया है। सैलाब से $10 बिलियन का नुकसान हो चुका है। दूसरी जानिब रूस में शदीद सैलाब के दौरान पुल टूटने से एक ट्रक नदी में गिर गया। जब ट्रक पुल के वस्त तक पहुंचा तो पुल उसका बोझ बर्दाश्त न कर सका और टूट गया।
ड्राइवर को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि ट्रक को पानी से बरामद नहीं किया जा सका। लकड़ी से बना हुआ ये पुल मॉस्को से 4,500 किलोमीटर दूर योरेम गांव में वाक़ था। ये पुल इससे पहले भी एक सैलाब के दौरान तबाह हुआ था, जिसको दोबारा तामीर किया गया था, क्योंकि योरेम गांव के रिहायशियों के पास दरिया अबूर करने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। सैलाब से रूस की ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर पुल को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे इलाके में ट्रैफिक मुअत्तल है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शदीद बारिश के बायस कोज़ाबिकालिस के इलाके में सैलाब से 650 के करीब मकानात और 5 रोड पुल तबाह हो चुके हैं। रुख करेंगे लातीनी अमेरिका का, जहां एक्वाडोर में जेल में हंगामा आराई के दौरान 21 कैदी हलाक हो गए, जबकि एक्वाडोर पुलिस के सरबराह के मुताबिक सुबह कोटोपाक्सी के 2 कैद खानों में शदीद हंगामे हुए, जहां 2 मुतहारिब गैंग्स के लोगों ने एक दूसरे पर धावा बोल दिया। लड़ाई में पुलिस एहलकार समेत मुतअद्दिद कैदी जख्मी भी हुए। हंगामों पर काबू पाने के लिए पुलिस के स्पेशल यूनिट्स तलब कर लिए गए। जेल अथॉरिटी के मुताबिक रवां साल जेल में होने वाला दूसरा बड़ा हलाकत खेज वाक़या है। फरवरी में हरीफ गिरोहों के दरमियान होने वाले झड़पों में 3 जेलों में 79 कैदी हलाक हो गए थे। कुछ बात करेंगे भारत की, जहां शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 112 अफराद हलाक और मुतअद्दिद लापता हो गए हैं। रियासत महाराष्ट्र शदीद बारिशों और सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है, जहां सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। बाज़ मकामात पर 594 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अफराद सैलाब में फंस गए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शदीद बारिशों की वजह से भारत के मुआशी हब मुंबई में एक इमारत ज़मीन बोस हो गई, जहाँ इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतासरा इलाकों से सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई भी की है। नाज़रीन, म्यूनिख की एक लग्जरी ट्रैवल एजेंसी डिज़ाइन ट्रैवल ने खला में सफ़र करने के लिए टिकट्स फ़रोख्त करने शुरू कर दिए हैं। डिज़ाइन ट्रैवल जर्मनी में बुकिंग संभालने वाली वाहिद एजेंसी है। एजेंसी के मैनेजर अली आबादी का कहना है कि अगर आप जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त हैं और आप 2,50,000 यूरोज़ रखते हैं और आपको सयाहती मकामात पर बहुत ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है, तो अब आप 1 घंटे के लिए खला में सफ़र के मुतहम्मिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ये ऑफ़र लोगों के लिए बहुत पुरकशिश होगी। ट्रैवल एजेंसी अब तक इस खलाई सफ़र के लिए 8 टिकट्स फ़रोख्त कर चुकी है। रुख करेंगे कौमी खबरों का। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि ओकाड़ा में झूला गिरने से 2 छोटी बच्चियां मौत के मुंह में चली गईं। आपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि पिछले साल पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने बच्चों के झूलों की क्वालिटी सर्टिफिकेशन लाजमी करार दी थी। उन्होंने कहा कि अगर ओकाड़ा की इंतजामिया ने क्वालिटी सर्टिफिकेट के बगैर झूले लगाने की इजाज़त दी तो डीसी को गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर सर्टिफिकेट था तो जिम्मेदारान को पकड़ें। चेयरमैन वापडा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन ने पाकिस्तान में मुतय्यन चीन के सफ़ीर नोंग रोंग से मुलाकात की, और मुलाकात में 14 जुलाई को पेश आने वाले दासू वाक़े के तनाजुर में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीर से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान चीनी सफ़ीर और चेयरमैन वापडा की जानिब से दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर तामीराती काम जल्द शुरू करने के अज़्म का इजहार किया गया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने कोयटा में बिजली के 4 नए फीडर्स का इफ्तिताह किया। अदियान साहबजादा, नवाकली बाईपास और पश्तून दरी फीडर्स का क़याम कम वोल्टेज के मसले पर काबू पाने में मुआविन होगा। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। हुकूमती इक़दामात का मकसद इदारों का इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद है। रेडियो पाकिस्तान कोयटा के मुलाजमीन सरियाब रोड ट्रांसमीटर की ज़मीन पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आज़म बलोच। कोयटा के अहम तरीन शारा सरियाब रोड पर ये रेडियो पाकिस्तान की जमीन है। 64 एकड़ रकबे की ये जमीन रेडियो पाकिस्तान की ज़र खरीद अराजी है। सरहद पार से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देने खित्ते की तेजी से बदलती हुई सूरत-ए-हाल के पेश नज़र जरूरी है कि इस अहम इदारे की जमीन को किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। सूबाई हुकूमत को पता होना चाहिए कि ज़मीन किसकी है और किस तरह आप हासिल कर सकते हैं उसको। रेडियो जो है वो आपका सरहदों का मुहाफ़िज़ भी है, इसलिए कि आपकी नशरियात जब वहाँ जाती हैं, लोग सुनते हैं उनको। मैंने साहब से कहा कि अफ़गानिस्तान से जिस तरह के प्रोग्राम नशर होते थे और जिस तरह के प्रोग्राम अब भी नशर हो रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए भी आपके पास बहुत ताकतवर रेडियो ट्रांसमीटर होना चाहिए और रेडियो की नशरियात होनी चाहिए। रेडियो पाकिस्तान ने सरियाब रोड की ज़मीन 1950 की दिहाई में हासिल की। ये ज़मीन ना तो वफाक और ना ही सूबाई हुकूमत की मलकियत है। तिजारती अहमियत और प्राइम लोकेशन पर वाक़या
زر خرید زمین کو اس طرح سے حاصل کرنا کسی طور بھی درست نہیں۔ اثاثہ ہے یہ نیشنل اثاثہ ہے، قومی سرمایہ ہے، اس کو اگر آپ بچا لیں گے تو میرے خیال میں ہم خدمت کریں گے، زبانوں کی بھی خدمت کریں گے اور آنے والے لوگوں کی، قوم کی، ملک کی خدمت کریں گے۔ ریڈیو پاکستان کے ملازمین بھی اہم ادارے کی زمین پر روڈ تعمیر اور اسپورٹس کمپلیکس کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں۔ سی بی اے مطالبہ کر رہی ہے کہ معاملے کی حساسیت کا فوری نوٹس لیا جائے۔ اپیل کرتا ہوں خدا را یہ ہمارا ٹرانسمیٹر کی زمین کو صوبائی حکومت سے بچایا جائے، یہ ہمارا اپنا زر خرید ادارے کا پراپرٹی ہے۔ موجودہ صورتحال میں قومی بیانیے کو دنیا تک پہنچانے میں ریڈیو پاکستان سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ حساس معاملے پر فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ اعظم بلوچ، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، عید قربان پر بڑی معاشی سرگرمیوں میں بھی تیزی آ جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں عید الاضحیٰ پر ہونے والی اقتصادی سرگرمیوں کا حجم 335 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ رپورٹ کریں گے راہیل انصار۔ پاکستان میں مذہبی تہواروں پر بڑی معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں جس سے لاکھوں لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق صرف عید الاضحیٰ پر ہونے والی معاشی سرگرمیوں کا حجم تقریباً 335 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ دیہی معیشت کو ہوتا ہے جہاں سے جانور لائے جاتے ہیں۔ ان سرگرمیوں سے کسان اور بیوپاری سمیت دہاڑی دار مزدور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عید کے 3 دنوں میں جانور حلال کرنے والے ہزاروں افراد کو بھی روزگار ملتا ہے۔ اس کے علاوہ چمڑے کی صنعت کے لیے کھالیں بھی اکٹھی ہوتی ہیں اور اقتصادیات کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ سے فیکٹری ورکرز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس سال لاکھوں کھالیں اکٹھی ہونے کا امکان ہے جو برآمدی صنعت کے لیے بھی مفید ثابت ہوں گی۔ عید سے پہلے عید کی تیاری کے لیے بازاروں میں شاپنگ بھی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ عید قرباں پر بیرون ممالک سے آنے والی ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ امریکہ اور یورپ سمیت مشرق وسطیٰ میں رہائش پذیر پاکستانی قربانی کے لیے رقومات پاکستان بھیجتے ہیں تاکہ قربانی کا فائدہ ملک کے پسماندہ طبقات کو ہو۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر تھر پارکر میں سماجی تنظیموں کی جانب سے گوشت کی تقسیم کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں سہیل جمالی۔ تھر پارکر اور سندھ کے کئی شہر پسماندگی کے اعتبار سے صوبے کے تمام اضلاع میں سب سے نچلی سطح پر ہیں۔ عید قرباں تھر کے ہزارہ غریب خاندانوں کے لیے مسرت کا ایسا تہوار ہے جب یہاں کے نادار افراد کو پیٹ بھر کر گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ کراچی کی سماجی تنظیمیں بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور اپنے تھری بھائیوں کی خوشیوں میں عملاً شریک ہوتی ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں تھر پارکر کے بہت زیادہ پسماندہ ترین جہاں پہ مطلب صرف قربانی کے دنوں میں ہی ان لوگوں کو گوشت مل پاتا ہے، تو ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ مستحق اور حقداروں تک پہنچائیں۔ تھر کے باشندوں میں بے شمار ایسے ہیں جو پورا سال گوشت خریدنے کی سکت نہیں رکھتے۔ اس فی سبیل اللہ قربانی کے اہتمام کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے بھی تعاون کیا اور عید الاضحیٰ کے تینوں دن تھر پارکر، ٹھٹھا، بدین، سجاول اور درجنوں مقامات پر گائے، بیل، بکرے، دمبے اور اونٹ کا گوشت مستحقین میں تقسیم کیا گیا۔ سہیل جوالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام کوٹ، ضلع تھر پارکر۔ کراچی میں مختلف علاقوں میں صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث شہری پریشانی کا شکار ہیں۔ ذیشان احمد خان کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے دن سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے جانوروں کا نذرانہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا۔ قربانی کے بعد صفائی ستھرائی کے انتظامات کرنے میں سندھ حکومت ناکام نظر آ رہی ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ کہیں کہیں جانوروں کی علائشیں اٹھاتا نظر آیا، تاہم شہر کے زیادہ تر علاقوں میں بدبو، تعفن اور گندگی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ شہری اس صورتحال سے سخت پریشان نظر آتے ہیں۔ اتنی بڑی آبادی کا شہر ہے کراچی اور اس میں پراپر نظام ہونا چاہیے، پراپر علاقے وائز ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ آج ہم بیماریوں کی باتیں کرتے ہیں تو یہ بیماریاں انہی چیزوں سے پھیلتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بلال غفار نے عید الاضحیٰ کے موقع پر کراچی میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات کو سندھ حکومت کی ناکامی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اور متعلقہ اداروں کی غفلت اور عدم توجہی کے باعث پی ٹی آئی کراچی کے کارکنان شہر کے مختلف علاقوں سے علائشیں اٹھانے اور انہیں ٹھکانے لگانے کے کاموں میں مصروف ہیں۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کو جب بھی وفاق کی مدد کی ضرورت پڑی تو وفاق 10 قدم آگے بڑھے گا۔
لاڑکانہ میں پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابرو کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ اگر سندھ حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں صوبائی حکومت وزیر اعظم عمران خان کے ویژن میں رکاوٹ ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نڈیرو کے گاؤں میرپور بھٹو گئے اور مرحوم ممتاز بھٹو کے انتقال پر ان کے بیٹے نوابزادہ امیر بخش بھٹو سے تعزیت کی۔ انہوں نے مرحوم کی روح کے اصال ثواب کے لیے دعا کی۔ ناظرین، ملتان میں شہریوں کو کورونا ویکسین لگانے کے لیے خصوصی مراکز کے ساتھ 21 موبائل ٹیمیں بھی فیلڈ میں متحرک ہیں۔ تفصیل جانیے فرحان مرزا سے۔ ضلع ملتان میں اب تک 4 لاکھ سے زائد افراد کی کورونا ویکسینیشن کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ جان لیوا ڈیلٹا وائرس کی پاکستان میں موجودگی کے پیش نظر اور NCOC کی ہدایت پر عید کی چھٹیوں میں بھی عام شہریوں کے علاوہ بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ سینٹرز پر سائنو فارم، سائنووک، ایسٹروزینیکا جبکہ فائزر کی سیکنڈ ڈوز ان افراد کے لیے دستیاب ہے جو فائزر کی پہلی ڈوز لگوا چکے ہیں۔ سیکنڈ ڈوز لگوائی ہے اور میں نے اپنے دوستوں کو بھی مشورہ یہی دیا ہے کہ ابھی آپ اپنی حفاظت کریں اور یہ لازمی لگوائیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس کرونا کی ویکسینیشن اویلیبل ہے جس میں بھی فائزر، سائنوویک اور سائنوفارم اویلیبل ہیں۔ پہلے لوگوں میں اویئرنیس اتنی نہیں تھی، پر جب سے یہ کووڈ کا زیادہ ایکسپوئر ہوا ہے تب سے لوگ جو ہے نا اس کے لیے دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے ویکسینیشن کروا رہے ہیں۔ عوام سے التجا ہے ایک کہ سارے لوگ جو ہے وہ ویکسینیشن کے لیے آئیں اور خود بھی محفوظ رکھیں اور پاکستان کو محفوظ رکھیں۔ اب کنٹینیو ویکسینیشن جو سینٹر ہے 24 آورز کے لیے کھلا رہے گا۔ دوسری جانب جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ نشتر ہسپتال ملتان میں اب تک مجموعی طور پر 864 افراد اس مہلک وائرس کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ کورونا کے 19 مثبت مریض اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق کورونا کی چوتھی لہر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شہری جلد سے جلد ویکسینیشن کرائیں، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے علاقے شاہرگ PMDC کول مائنز ایریا میں کوئلہ لیز نمبر 146 میں حادثے میں 4 کارکن جاں بحق ہو گئے۔ کوئلہ کانکن میں حادثہ مٹی کا تودا گرنے کے باعث پیش آیا۔ راولپنڈی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس سے خطاب میں عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین پیر حسان حسیب الرحمان نے کہا ہے کہ اسلام میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں، مسلمان بھائی بھائی ہیں، پاکستان کسی قسم کی فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کانفرنس میں علماء کرام اور نعت خواں سمیت بڑی تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر وطن عزیز کی سلامتی، خوشحالی، ترقی، اتحاد بین المسلمین اور کورونا وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ناظرین، نامور ادیب قدرت اللہ شہاب کی 35ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے گلگت میں آنکھ کھولی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادبیات میں MA کرنے کے بعد وہ سول سروس میں آ گئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ مختلف اہم انتظامی عہدوں پر خدمات انجام دیتے رہے۔ قدرت اللہ شہاب اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو میں بھی وابستہ رہے۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل ان کا ایک اہم کارنامہ ہے اور وہ ایک عمدہ نثر نگار اور ادیب تھے۔ انہیں اپنی سوانح حیات شہاب نامہ سے بے پناہ شہرت حاصل ہوئی۔ ان کی دیگر تصانیف میں سرخ فیتا، یا خدا اور ماں جی قابل ذکر ہیں۔ نئے اور پرانے لکھنے والوں کے لیے قدرت اللہ شہاب ایک مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔ ادب کے اس روشن چمکتے ستارے کو پاکستانی حکومت نے ستارہ قائد اعظم اور ستارہ پاکستان سے بھی نوازا۔ قدرت اللہ شہاب 24 جولائی 1986 کو اسلام آباد میں وفات پا گئے اور وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم مشرقی پنجاب اور کشمیر میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 46 ڈگری، نوکنڈی میں 44، تربت میں 43، جیکب آباد اور دلبندین میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔